وہ لوگ جو کوٹا سسٹم کے حمایتی ہیں، ان سے ایک سوال ہے کہ کیا وہ لوگ کوٹے کی بنیاد پہ فائدہ اٹھانے والے پورے ملک کے شہروں میں بڑے عہدوں پہ فائز ہیں اور شہروں میں اپنے بچے شہری طرز پہ پڑھاتے ہیں؟ کیا ان پر یہ جائز ہے کہ وہ آج بھی اندرون سندھ کا ڈومیسائل بنا کر تعلیم اور نوکری میں کوٹے کی بنیاد پہ پاکستان کے تمام صوبوں کے میرٹ کے بغیر فائدہ اٹھائیں؟ بھائی یہ 2013 میں ختم ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے ایک SRO کے ذریعے اس میں تبدیلی کر کے 2 لفظوں کی جاری کر دیا اور آج تک اس کے مطابق امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ کوٹا سسٹم جو بھی ہے اس کا کوئی نیم البدل لائیں، اس کا کوئی حل نکالیں۔ ہم میرٹ کے بیسس پہ صحیح بچے ہائر کریں گے تو وہی پاکستان کو صحیح کریں گے، رادر دین کہ تم یہ زبان بولتے ہو تو تم اس قابل نہیں ہو، تو تم یہ زبان بولتے ہو یا تمہارا یہ رنگ ہے یا یہ لینگویج ہے۔ دس از ناٹ اے کرائیٹیریا ٹو فکس سم تھنگ۔ جیسے میں نے کہا تھا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اس کی ڈگریز دیکھتے ہو، اس کی اسپیشلائزیشن دیکھتے ہو، اس کا آرٹ دیکھ کے آپ اسے علاج کرواتے ہو۔ یہ نہیں کہ تو سندھی بولتا ہے یا تو بلوچی بولتا ہے یا براوی بولتا ہے۔ تو پلیز ان تضادات سے باہر آئیں۔ دنیا مارس پہ جا رہی ہے، ہم یہ زبانوں سے ہی باہر نہیں آئے، ڈومیسائل سے ہی باہر نہیں آ رہے۔ پلیز اس کے اوپر کچھ کریں۔ پاکستان میں 50 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو ہے ڈگری سے زیادہ جس پرچے کی ویلیو ہے وہ ہے ڈومیسائل۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ بنگلہ دیش میں جو حالیہ خونی انقلاب آیا یا جس طرح طلباء سڑکوں پر نکل آئے، اس کی وجہ بیسیکلی کوٹا سسٹم تھی۔ وہاں پر 30% کوٹا ان لوگوں کے لیے مخصوص تھا جنہوں نے بنگلہ دیش کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا۔ طلباء نے اس کے خلاف مظاہرے کیے اور آخر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ 30% کوٹا ختم کر دیا جائے۔ یہ کوٹا دراصل ان فوجیوں کے بچوں کے لیے رکھا گیا تھا جنہوں نے جنگ آزادی میں شرکت کی تھی۔ کیا پاکستان میں بھی یہ اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہے؟ تو آئیے ہم ایک جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں کوٹا سسٹم اگرچہ 50 کی دہائی میں نافذ کیا گیا اور اس وقت مشرقی پاکستان بھی تھا، اور اس کوٹا سسٹم کا فارمیٹ بہت ہی مختلف تھا، مگر اس کوٹا سسٹم میں بھی کراچی کو صرف 2% کوٹے پر ریسٹرکٹ کیا گیا۔ میں جو اس ویڈیو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے 1973 کا کوٹا سسٹم۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 1973 میں پاکستان میں آئین دیا گیا اور اسی سال اسی آئین کی نفی کی گئی، کیونکہ کوٹا سسٹم میرٹ کی نفی ہے اور کوٹا سسٹم کے خلاف جو بھی بات چیت ہوتی رہی ہے وہ صرف کاغذوں کی حد تک یا ٹی وی انٹرویو کی حد تک رہی ہے۔ عملاً اس پر ختم کرنے کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہوا۔ پاکستان کے آئین میں اگر آپ آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 5 تک دیکھیں تو یکساں حقوق کی اور یکساں میرٹ کی بات کی گئی ہے، یکساں مواقع کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ مسلسل اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور اب اس کو ہوتے ہوئے بھی کوئی 51 سال ہو گئے، یعنی مور دین ہاف سینچری وی ہیو پاسڈ ود دا ایگزسٹنگ کوٹا سسٹم۔ تو 1973 میں جب یہ کوٹا سسٹم لایا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ صرف 10 سالوں کے لیے ہے، اور اس 10 سال میں جو دیہی علاقے ہیں اس کو ترقی دے کر مساوی لائے جائے گا شہروں کے مقابلے میں۔ لیکن اس کوٹا سسٹم میں آپ دیکھیں جو 73 کی بات کر رہا ہوں کہ 90% کوٹا ان لوگوں کو لیے دیا گیا جو کہ پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور صرف 10% کوٹا جو ہے وہ میرٹ کے لیے رکھا گیا۔ تو ایک طرح سے تو یہ میرٹ کا کل ہے یا میرٹ کی جو ہے بالکل نفی ہے، کیونکہ اگین اس کی اگر فردر بائیفورکیشن میں جائیں تو سندھ کو فردر تقسیم کیا گیا، سندھ اربن اور سندھ رورل میں، اور وفاقی کوٹے کے حساب سے کراچی کو صرف 2% پر ریسٹرکٹ کر دیا گیا، جبکہ یہ بات آیا ہے اور سب جانتے ہیں کہ 1947 کے پارٹیشن کے بعد ایک واسٹ میجورٹی لوگوں کی جو انڈیا سے مائیگریٹ ہوئی تھی وہ کراچی میں سیٹل ہوئی تھی۔ تو کیا یہ کراچی والوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ 1973 کے بعد 1983 میں جب 10 سال پورے ہوئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اس وقت جو لوگ اس کام پر مامور کیے گئے تھے کہ جی 10 سال میں ہم اس پسماندہ علاقوں کو ترقی کر کے شہروں کے برابر لے آئیں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ مزید اس میں 10 سال کی اور توسیع کر دی گئی اور 93 تک اس کو بڑھا دیا گیا۔ یہ فوجی حکومت کے دور میں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ مسلسل بڑھتا گیا
जब नून लीग की हुकूमत आई तो 20 साल के लिए फर्दर उसको एक्सटेंशन दी गई। तो इस तरह से ये एक्सटेंशन के साथ ये कोटा सिस्टम 2013 में अपने 40 साल पूरे कर चुका, लेकिन उसके बावजूद पिछले 11 साल से अब इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। कोटा सिस्टम की तकलीफ़ का वही शख्स अंदाज़ा कर सकता है जिसने उसको फेस किया हो। बदकिस्मती से मैं उन लोगों में से हूँ जो कोटा सिस्टम का विक्टिम रहा हूँ। मैं जब दाखिले के लिए गया, जो एक वफाकी इदारा था, वफाकी यूनिवर्सिटी थी, तो अगेन वहाँ पे कोटा सिस्टम था और शायद मैं खुशकिस्मत था कि उस 10% मेरिट कोटा में मेरा नाम आ गया था। लेकिन मेरी क्लास में ऐसे बहुत सारे मेरे तलबा दोस्त थे जिसकी परसेंटेज 40 और 45% की थी और वो मेरे साथ बैठे हुए थे, जबकि मैं 70+ लेके आया था और मेरा बिल्कुल मार्जिन पर एडमिशन हुआ था। तो एक दुख तो मुझे उसी वक्त लगा था, क्योंकि मेरी एक यंग एज थी और बड़े एम्बिशंस थे, लेकिन जब ये सूरत हाल देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। उसके बाद 1981 में जब मैं पास आउट किया, डिग्री ली मैंने इंजीनियरिंग में और मेरा CGPA 3.96 था, तो फिर मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो खलाई तहकीकी इदारे से वाबस्ता हैं। तो वहाँ पर मैंने जब अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं हुआ कि उस वक्त वहाँ मेरिट पर कोई कोटा नहीं था उनके पास, और मेरी आधी क्लास के जो बच्चे थे, मेरे कुलीग थे, वो सारों को जॉब मिल गया बिकॉज़ उनके पास उन इलाकों का डोमिसाइल था जो जिसको पसमानदा डिक्लेयर किया गया था। हालांकि ये सारे लोग शुरू से आखिर तक कराची में रहते थे और सारी जो लाइफ है उन्होंने कराची में गुजारी थी। तो आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बारी आती थी, वहाँ पर भी कोटा सिस्टम अप्लाई होता था। तो यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में 50 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन इस वक्त भी जो है डिग्री से ज़्यादा जिस पर्चे की वैल्यू है वो है डोमिसाइल। आपके कैरियर का सारा दारोमदार एक डोमिसाइल पर आकर रुक जाता है कि डोमिसाइल अगर आपका एक सही जगह का बना हुआ है तो आपको हर जगह बड़ी आसानी से आपको दाखिले भी मिल जाएंगे और स्कॉलरशिप भी मिल जाएंगी। और अगर बदकिस्मती से आप उस 10% के लिए फ़ाइट करते हैं तो चांसेस बहुत कम ही होते हैं कि आप अपनी कैरियर में कोई ग्रोथ कर सकते हैं। मैं अपने सिंधी भाइयों से कहता हूँ, भाई आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आप जो हैं वो ये समझें इस बात को कि यार आप क्यों हमेशा कोटों पे चलेंगे यार, आपको क्यों नहीं ये लोग अपग्रेड करते। ये मेरिट भी तो कोई चीज़ होती और है। मेरिट आप कब मुतालबा करेंगे कि मेरिट, ये अंदरून सिंध से आवाज़ उठनी चाहिए, दानिशवरों से आवाज़ उठनी चाहिए। और अब तो मसला ये है कि कोटा वोटा तो रह गया एक तरफ, अब तो जाली डोमिसाइल बन रहे हैं। इस्लामी शरीयत अदालत में भी कोटा सिस्टम जो है इसको गैर इस्लामी करार दिया जा चुका है। 1973 के आइन में कोटा 10 साल के लिए बनाया गया था, जैसे दूसरी मरतबा 20 साल और तीसरी मरतबा 40 साल के लिए कर दिया गया, लेकिन अभी तक वो मकासद नहीं हासिल हो सके। इसके अलावा जो सिंधी शहरों में रहते हैं लेकिन वो डोमिसाइल अपने आबाई गांव का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इस वजह से वो आज तक अपने डोमिसाइल की बुनियाद पे हर शोबे में प्रेफरेंस पर भर्ती हो जाते हैं। कराची में कसीर तादाद हैदराबाद, दक्कन, अलीगढ़, कानपुर, बम्बई, गुजरात वगैरह वगैरह की है। और कराची शहर में जो सिंधी रहते हैं वो भी जब डोमिसाइल बनाते हैं तो अपने आबाई गाँव का ही बताते हैं ताकि कोटा सिस्टम का फ़ायदा उठा सकें। असल मसला ही गवर्नेंस है। जब तक देहात और शहर से बाहर रहने वालों को सिर्फ नौकरियों से खुश किया जाता रहेगा और गैर इलाके शहरी इलाकों में कोई डेवलपमेंट नहीं की जाएगी और वहाँ बुनियादी सहूलतों से लेके आला तालीम और सेहत के मौके फराहम नहीं किए जाएंगे तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कोटा सिस्टम सूबाई हुकूमत के लिए इसलिए भी सूट करता है कि इस पर सियासत करना आसान है। पहला क्वेश्चन जो मुझसे हुआ इट वाज कि आपका नाम अनीबा खान, आपका डोमिसाइल कराची, बैठ जाएं। चले बैठ गए। बैठने के बाद 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, 3 घंटा गुजर गया, 4 घंटे गुजर गए और वहाँ पे जो लोग मेरे बाद आए तो उनको पहले एंटरटेन किया गया। जी बिल्कुल, सर्व किया गया उनको पहले। उन्होंने कहा जी आप तो अर्बन से हो, सिंध अर्बन से हो, कराची के डोमिसाइल से आपके लिए नहीं हो सकता। मैंने कहा सर एक काम कर लें, आप मुझे सिर्फ इंटरव्यू देने दें, आप उसके बाद रिजेक्ट कर दें, क्योंकि बहुत मेंटली तौर पे तैयार होके आई हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ये पॉसिबल। मैंने कहा मैं अपने आप को आग लगा लूँगी, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए डेस्परेट हूँ। तो कहने लगे लगा लें आप। आपको प्रेफरेंस नहीं दी गई, दूसरे एरियाज़ के लोगों को प्रेफरेंस दी गई और ये प्लेसमेंट कराची में थी। जी बिल्कुल, ये प्लेसमेंट कराची में। लाइक टेक्निकली जो शहर है वहीं के लोगों को नौकरी नहीं मिलती। देखिए मुल्क सबका है, अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन
अपॉर्चुनिटीज़ को फैलाना चाहिए, ये फैलाना हुकूमत का चाहिए। काम है ना कि बिल्कुल। भाई अगर किसी को इतनी दूर से यहाँ आना पड़ रहा है तो यहाँ वाला कहाँ जाएगा। तो कोटा सिस्टम में कराची के लोग कहाँ फिट होते हैं? सर जी फिट ही नहीं होते, फिट प्राइवेट ही जॉब नहीं करें होते। आप। तो किसी और को प्रेफरेंस दी, Preference दी। कोटा सिस्टम पे। कोटा सिस्टम पे, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान को इस वक्त मेरिट की ज़रूरत है। पाकिस्तान के तमाम इदारे कोलैप्स हो चुके हैं। आज जो हालात हम देख रहे हैं वो शायद इसी वजह से हैं कि हमने कोटा के को ज़्यादा ज़ोर दिया, मेरिट को हमने पसे पुश रखा, और जो कुछ भी हालात हो रहे हैं या होने जा रहे हैं इसकी बड़ी वजह है कोटा सिस्टम में। आपको ये भी याद होगा कि 1992 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी उसके ख़िलाफ़ रूलिंग दी थी और ये क्लियर कहा था कि कोटा सिस्टम आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो अमलन इस पर कुछ सोचता हो या इसको ख़त्म करने की बात करता हो, चाहे वो सियासतदान हो या चाहे वो अदालतें हों या कुछ भी हो। तो ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े दुख की बात है। और आज शायद जो पाकिस्तान में हालात हैं वो इसीलिए इतने अबतर हैं और कोई भी इदारा अपनी जगह पे काम सही नहीं कर रहा कि शायद उस वक्त जो कोटा सिस्टम नाफिज किया गया था और उसमें जो लोग मुलाजमतों में इंडक्ट किए गए थे वो चूँकि अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग करें, तो अनफॉर्चुनेटली उनसे डिसीजन मेकिंग हो नहीं पा रही। और इसीलिए जो है जब नाअहलियत हो तो फिर करप्शन भी आता है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आजकल के जो हालात हैं उसकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी या बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो कोटा सिस्टम का है। अब मुझे नहीं पता कि ये कोटा सिस्टम कब तक रहेगा या क्या हमारे मुल्क में भी बांग्लादेश की तरह हालात पैदा किए जाएंगे, ये इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।